हाय गुड आफ्टरनून गाइस सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ प्लीज सैटल डाउन ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਰੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਰੋਡੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਛ ਜਜ਼ਬਾ ਆ ਜੋਸ਼ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਵਿਮਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਖਿਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਰੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰੋਡੀਜ਼ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਉਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕੁਛ ਬਦਲਾਵ ਲਾਈਏ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯੂਥ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਦੈਟਸ ਦ ਏਮ ਆਫ ਰੋਡੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਦੈਟ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਦ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੁਛ ਬਦਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੋਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਕੁਛ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਰ ਰੋਡੀਜ਼ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨਿਕਲੂਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਗਲਤ ਕਰਿਆ ਸੋ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਈਏ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4 ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਸੀਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ 20 ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੋਡੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਰੋਡੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਾਜ਼ ਨਿਖਿਲ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁਧਰੇ ਸੋ ਨਿਖਿਲ ਭਾਈ Thanks, Prince. Good afternoon, everyone. Exactly. My wife is a Sardarni, so I understand most of the things that she says.
the operative word being most. So, like Ranvijay and Prince have said, that the theme this year on the show is different, Roadies Revolution. And one of the questions that we've been asked is, does that mean that Roadies is not going to have the same energy, passion, adventure that we used to have? No, the answer is all of that is 1000% still going to be there. But this time, instead of contestants winning for themselves or winning for a gang leader, they're going to be winning for all of us, for change. And one of the reasons that people come onto a show like Roadies, they come on to use Roadies as a platform and further their own careers, to get noticed and to create a platform and a stepping stone for themselves. We've seen it happen with so many people. Ranvijay's career started on Roadies. Prince's career in many ways started on Roadies. Ayushman's as well, Barney's. But what we want to tell people is that as you're looking towards using this platform as a way to securing your future, also think, this is personal to me, think about the future of the planet. You know, we talk about so many issues that are facing our generation now, one of them being gender inequality, empowering women. But if we don't fix the planet, all of these issues will become useless because we won't have a planet to live on. We don't have a planet B. We don't have a plan B. Which is why when we talk about climate change and environmental issues, I think these are far more important than the other issues that surround us. I'm not saying that any issue is less important in any way, but if we don't fix the planet, then we won't have a reason to confront any of the other issues, because as a civilization, we will perish, we will die. हाँ, तो सबसे पहले तो हम एक्चुअली इस बारे में कल भी बात कर रहे थे कि कंटेस्टेंट में होना क्या चाहिए. हर कंटेस्टेंट अलग होता है. किसी का दिमाग ज़्यादा तेज़ होता है, किसी का फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा तेज़ होता है, कोई मैनिपुलेशन और पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं. मगर हर रोडी में मेरे हिसाब से नमक होना चाहिए. There must be some X factor. जैसे कि रणवीर जी ने कहा, in English you call it an X factor. It's very difficult to put your finger on it. क्योंकि अगर आप जो पिछले 16 साल के रोडीज़ को देखोगे, हर रोडी किसी ना किसी तरह से अलग होता है दूसरे रोडी से. मगर हर रोडी में एक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो शो पे आते हैं. एंड इट्स डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स, मगर जब वो सामने आते हैं ना तो सबको नजर आ जाता है. बाकी जो रोडीज पे आ रहे हैं उनको ज़रा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि उनको क्या करना पड़ेगा. उन्होंने पहले अपनी लाइफ में क्या अच्छा किया, क्या नहीं किया, क्या समाज सेवा की, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. पर वो जब इस साल रोडीज पे आएंगे, उसके बाद क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है. तो ज़रूरी नहीं है कि लोग कहें कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं आज तक, किसी की मदद नहीं की, तो शायद मैं रेडी नहीं हूँ रोडीज़ के लिए. नहीं, आप रोडीज़ पे आओ, आप अपनी हिम्मत और अपना जोश और जुनून लेकर आओ. उसको किस तरीके से सही चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, वो इस साल का रोडीज़ है. और शायद मेरे लिए एक्चुअली जो लोग पहले से अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको ये प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज या उनको अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है, उस एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वो ऑलरेडी कर रहे हैं. सो इफ़ यू टॉक अबाउट मिलन जो पिछले साल था, या वो ऑलरेडी ये काम कर रहा है, तो अगर वो आएगा तो कुछ सीखेगा नहीं. लेकिन ऐसे लोग जो जिनको दिशा ही नहीं है, जिनके पास वो एनर्जी है लेकिन दिशा नहीं है कैसे करना है, वो अगर आए और वो बदल जाए और उनकी वजह से जो लोग उनको देख रहे हैं, जो उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, वो बदल जाए, वो उद्देश्य है. दैट्स ऑल. सो कंटेस्टेंट्स को कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बस उनको इतना पता होना चाहिए कि जब वो आएंगे जर्नी पर, वो टास्क कर रहे हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका जो एंड में इवेंचुअल रिजल्ट होगा वो अच्छे के लिए होगा. एंड तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चिंता हम करेंगे. हाँ, और वो हमारे चंडीगढ़ में और दिल्ली में लोगों को लगता है कि अगर हम बॉडी बिल्डर हैं या बहुत ज़्यादा फिटनेस है तो रोडी सिर्फ उन्हीं के लिए है. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर ऐसा आप लास्ट ईयर देखेंगे, सोहेल था, यहीं कहीं बैठा होगा वो, सोहेल, वो कॉमेडी करता था, लोगों को हंसाता था. हमें ऐसे नहीं चाहिए कि सारे ऐसे आ जाएं सिर्फ बॉडी बिल्डर्स और हम शो बनाएंगे. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. जैसे रन भाई बोलते हैं हमेशा कि हमें करेक्टर्स चाहिए जो एंटरटेन भी कर पाएँ. वो तो होगा ना. फिटनेस, बॉडी नहीं. जितने बॉडी बिल्डर्स हो गए वो खत्म हो जाते हैं, वो खुश निकलते हैं, और वो हमें नहीं चाहिए. अर्जाइल हो, है ना, हाँ, इंड्योरेंस पे काम किया उन्होंने, अपने स्पोर्टिंग कुछ भी कराना हो तो हो जाए. और वैसे भी वो रोडीज का जोश इतना है, कोई भी आएगा ना टास्क तो वो कर ही लेगा. जीतना हारना, फर्स्ट सेकंड, वो बात की बात होती है, वो तो कर लेगा. हमें वैसे इंसान चाहिए जो ये टाइटल जीते उसको वेस्ट ना करे, उसको आगे लेके जाए. जैसे मिलन लास्ट ईयर आया था, वो आज कितने अच्छे काम कर रहा है. वो शो में आने, वो जीता नहीं है पर वो दुनिया के लिए जीता हुआ है, क्योंकि वो उसको आगे लेके जा रहा है ना.
सो हमें वैसे ही लोग चाहिए इस बार भी। ऑनेस्टली एज अ होस्ट जो मेरा अभी मेरा रोल है, आई कैन हैव फेवरेट कंटेस्टेंट्स, बट एज अ गैंग लीडर ऑफ कोर्स यू कैन. तो व्हेन आई वाज अ गैंग लीडर, प्रिंस, वरुण, दीज गाइज वर माय फेवरेट कंटेस्टेंट्स, तभी मैंने इनको चुना था, राइट? लेकिन एज अ होस्ट अब मैं ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा फेवरेट है, ये वो मेरा, बिकॉज फिर वो बाकी सारे कंटेस्टेंट्स को लगता है कि यार अब तो ये और- यू नो, और वैसे ना ही भी- गैंग लीडर्स में मेरा कोई फेवरेट है. हाँ। अब ऐसे निखिल और प्रिंस में देयर इज नो फेवरेटिज्म, बट देयर वाज अ रोडी कॉल्ड विनोद रावत. जब रोडीज 2 की बात है, उनकी एक टांग नहीं थी, एंड दैट टाइम ही डिडंट इवन हैव द न्यू वन. उनके पास तब जयपुर वाली जो लकड़ी वाली टांग थी ना, वो थी. आजकल तो बहुत आ गई है ना, जिसमें उसमें ना वो एंकल भी नहीं मुड़ता था. तो टास्क के बीच में उल्टा लटका हुआ वो पहले अपने वो टांग को ठीक करता था और फिर वो आगे करता था, लेकिन उसने सारे टास्क करे. तो वो आज भी मैं कहता हूँ, अगर वो रोडीज पे आकर उसने सारी जर्नी में सारे टास्क किए और विद अ स्माइल, तो इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. मेरे लिए भी, मैं हमेशा ये याद करता हूँ, लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, बोलता है यार वो विनोद रावत तो बिल्कुल कर देता है. ऐसे ही। So, पाजी आपको एक लड़का याद है रोडीज में पिछले 6 साल से ऑडिशन दे रहा है, सचिन नाम का लड़का, जो व्हील चेयर पे आता है. उस हम सेलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हम उनकी लाइफ रिस्क में नहीं लेके जाना चाहते, क्योंकि वहाँ पर ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पर वो कहेंगे हमें करना है, पर हम चाहकर भी करवा नहीं पाएंगे. तो हम उसको बेचारे को ऐसे दबा कर रखेंगे कि नहीं तू प्रोटेक्ट करके रखेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा. बट उसका जो हमेशा आने का जज्बा है वो हमें बताता है कि ही इज़ अ ट्रू रोडी, यू नो, जो हमेशा आता है. और फेवरेट ऐसा होता है कि हमारे सिर्फ शो के अंदर फेवरेट्स होते हैं, बाहर आते हैं तो सब एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो शो तक ही है कि हम मेरे पास 5 है, इनके पास 5 है, हमें इसके लड़ना है. वो बाहर आके अरुण रफ्तार की गैंग से जीता था, पर वो सबसे ज़्यादा मेरे घर पे मेरे पास वो होता है, यू नो, मैं उसको बहुत बार मिलता हूँ, वो अभी बैठा होगा कहीं पर बाहर होगा. सो ऐसा नहीं है कि हमारा कोई फेवरेट हो, यू नो. जब शो खत्म होता है उसी दिन रात को जब हम सब साथ बैठते हैं तो भूल जाते हैं कौन सा किसी गैंग में था, सब एक है. सो प्रिंस, आपकी और नेहा, ऑन योर राइट, आपकी और नेहा की काफ़ी पर्सनल लड़ाई भी हो चुकी है शोज में. मतलब कितना मुश्किल हो जाता दोबारा. तभी तो अभी प्रिंस के एरिया में है, तो नेहा चली गई. तो ये जब इतना पर्सनल हो जाता है तो फिर ये कितना मुश्किल होता है दोबारा से. ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी पर्सनल कुछ फाइट्स होती हैं, ऐसा नहीं. अब हम बैठे होंगे तो हम मजाक में भी करते हैं, कभी वो मेरी बजा देती है, कभी मैं उसकी बजा देता हूँ. सो शो में ऐसा होता है क्योंकि हम सब पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू नो. वो प्रेशर जो हमें अपने गैंग को आगे लेके जाना है, वो प्रेशर हमारी फाइट करवाता है, और वो सिर्फ फील्ड के अंदर होती है. जैसे हम वो फील्ड से बाहर निकलते हैं, विद इन 2 सेकेंड्स मैं, नेहा और जैसे हम दोनों हैं, रिलेशन हमारा जो है वो ही रहता है. फील्ड के अंदर आते ही हम प्लेयर्स हैं, हम प्लेयर की तरह खेलते हैं. हमारा मैच चल रहा है, उसे भी जीतना है, मुझे भी जीतना है, तो हम वो फाइट को वैसे रखते हैं. बाहर जाकर वैसा कुछ नहीं है कि नेहा तूने ये क्यों किया, या वो ऐसा क्यों. एक साधारण सा अगर एग्जाम्पल बनाना हो, तो जैसे जो इंडिया टीम के लिए कबड्डी खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो इंडिया टीम के लिए खेलते हैं तो दोस्त है, एक टीम के लिए खेलते हैं. लेकिन जब वो अलग अलग टीम्स में प्रोफेशनल कबड्डी खेलते हैं तो एक दूसरे के राइवल्स हैं. तो वैसे ही लाइफ में ये लोग दोस्त हैं, इनके अच्छे रिलेशनशिप. बट जब रोडीज पे अपने गैंग को जिताना है तो वो हो ही जाता है वो. एंड आई थिंक वो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में आता है, और उसको देखने में लोगों को ही मेरे को लग रहा है मज़ा आ रहा है. जैसे सवाल आपने पूछा है, तो यही अंदेशा है कि आई थिंक एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट. नहीं ऐसा चीटिंग कौन करता है? चीटिंग तो कोई नहीं करता. ऐसा कुछ नहीं होता यार. देखो वो गेम का पार्ट है ना, गेम का पार्ट है. देखो दूसरे जाने को बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए. हाँ बिल्कुल. पता है क्या होता है, अभी जैसे अगर आज एक टास्क है जहाँ पर निखिल और मैं बोलते हैं कि अच्छा यार हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और प्रिंस को निकाल देते हैं, ठीक है, ये हो गया. अगली बारी ऐसा टास्क है जहाँ पे बहुत ऐसा लग रहा है मेरे को और प्रिंस को कि यार ये निखिल तो जीत जाएगा, तो मैं और प्रिंस एक साथ हो जाते हैं, ठीक है. बात ये कि मैं दोनों बारी जीत गया, राइट. वो गेम का पार्ट है कि सर्वाइवल के टाइम पर इंसान क्या करता है, और ये हमारे को अपनी नॉर्मल लाइफ्स में होपफुली करने का मौका नहीं मिलता. अपने बारे में ये आपको पता ही नहीं कि आप अपने दोस्तों को कभी धोखा दोगे, क्योंकि आपको उस सिचुएशन में किसी ने डाला नहीं है. एक्चुअली जिस दिन आप जाओगे ना उस सिचुएशन में और आपको पता लगेगा कि अच्छा इन दोनों के बीच में मैं ये चूज करूंगा, तो दैट इज व्हाट रोडीज इज. बस ये उसमें एक चेंज है कि रन भाई इसीलिए होस्ट बने हैं, क्योंकि जब जज थे, लीडर थे, तो हम दोनों साथ हो जाते थे, क्योंकि हम दोनों अगेंस्ट तो हो नहीं सकते, और जब साथ हो जाते थे तो बाकी सबकी फटती थी.
क्योंकि कोई हरा नहीं सकता फिर हमें। उसके बाद निखिल भी आ गए, फिर हम निखिल आ तीनों गए। एक साथ हो गए। फिर फिर ऐसा ऐसा नहीं पाजी, आप एक काम करो, हाँ। आप अपना काम रखो, हम छोटे ठीक है, हम यहाँ की फील्ड संभालते हैं।